Okay, so again, good afternoon to all of you and कल जो हम लोगों का टॉपिक था वो क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूला क्या था? अगर आप लोगों को याद है, अदरवाइज यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो एंड देयर आर फॉर्मूलाज, ऑल द फॉर्मूलाज आर गिवन। तो वहां से आप उस फॉर्मूले को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? AB means the distance between any two point is given equal to x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया था। तो ये हमारा एक फॉर्मूला था। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की जब हम लोगों ने बात की, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग यहां से क्या फाइंड करते थे? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आज हम लोगों को क्या करना था? आज हम लोग इस टॉपिक पर कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें इस टॉपिक को और भी ज्यादा क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। Okay, students. So we start some questions, and the question is given. Question number one. Question number one is given. Question number one क्या कहता है? Find the distance between the points. Find the distance between the points Find the distance between the points P is equal to 4 minus 4 comma 7 and Q is equal to 2 comma minus 5. 2 comma minus 5. Students, 2 points are given. One is a P, another one is a Q, and we are asking that find the distance between any two point. अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया इस क्वेश्चन को फाइंड करना। ओके, 1 minute स्टूडेंट। चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो यहां पर अगर इसके सॉल्यूशन में जाएं, सो यू ऑब्जर्व दैट दिस इज द पॉइंट P इज गिवन। P इज इक्वल टू -4, 7 एंड Q इज इक्वल टू 2, -5। सो दिस इज टू बी x1 and y1। This is to be x2 and y2. Now we put the formula. Distance between any two point is equal to x2 minus x1 to the whole square. You observe from here x2 minus x1 to the whole square. And what we do? x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2 minus x1 to the whole square means -4. ठीक है, to the whole square. Plus y2 minus y2 is given -5 minus y1 is given 7, that is to be okay students, now we get this is equal to 2 and minus is equal to plus, so this become 2 plus 4, that is to be 6 square and plus -12 square. So root 6 to the square is 36 plus -12 square is equal to -12 का क्या होता है? Minus, it doesn't matter in a square because minus is equal to plus. So 12 square is equal to 144. So your answer is 144. And now you get 36 plus 144 is equal to 180. 180, and we can write also 2 into
2 इंटू, ठीक है, सॉरी 2 इंटू मत रखिए, ठीक है, 36 इंटू 5, वी कैन राइट इज 36 इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 एंड रूट. Okay students, so your answer is 6 root 5 unit. 6 root 5 unit. So this is your answer. Okay. So first question is based on, that is distance between any two point. पहला जो क्वेश्चन था हम लोगों ने क्या फाइंड किया, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता करते हैं. तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, दूरी वाला जो फार्मूला निकालने का था उसको यूज किया और उसके थ्रू हमने क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला, 6 रूट 5. ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपका यहां से क्लियर हो गया होगा. चलिए, नाउ वी कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. नाउ वी कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. Okay, second question is given in front of you. Find the distance of the point. Question is given. Question number 2. It is given. Find the distance. Find the distance of the point P 6, minus 6. 6, minus 6 from the origin. From the origin. From the origin. Okay, students. We know that. How can we find the formula? Means distance from the origin. Suppose that this is a Cartesian plane. Okay, a point is P here. And the value of coordinates of points are 6, minus 6, 6, minus 6. You observe that this is the origin point. So he is asking that distance from here to here. Okay? तो जब ये वाला पॉइंट जो है, इसका कोऑर्डिनेट तो 0, 0 होता है. इसका कोऑर्डिनेट तो 0, 0 होता है. इसका 6, minus 6 है. और हमें पता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और एक्स वाई कौन है, यही तो है, क्योंकि ओरिजिन का तो 0, 0 है. ठीक है, सो वी कैन राइट दैट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, एंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन 6, minus 6. So we can write here 6 square plus minus 6 to the square. And this is equal to 36 plus 36. 36 plus 36. Okay. So we can write it as a 72 also. But students, do you know 72 is not a perfect square number. तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट 236, 2 into 36. ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट 2. सो योर आंसर इज 6 रूट 2. सो डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज इक्वल टू 6 रूट. ये हमारा आंसर यहां से मिल जाता है. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. यू कैन राइट हियर एज अ यूनिट आल्सो. आंसर में हमेशा लिखते हैं यूनिट. ओके, ओके, नाउ वी कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेम टॉपिक. ओके, देखिए यहां पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना. अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली इस टॉपिक पे सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली हमें कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. ठीक है, अभी हम लोग इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप. नाउ वी कम ऑन द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. तीसरी तरीके का क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे. चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आप इन वीडियोस को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. चलिए, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, find the value of y for which the distance
for which the distance between the points A is equal to 3,1. Between the points A is equal to 3,1 and B is equal to 11,y. And B is equal to 11,y. ओके, B is equal to 11,y. अब देखिए इसने क्या कहा, इस 10 यूनिट इज 10 यूनिट. ठीक है students, distance is given here. Now you observe that distance is given here 10 unit. Okay, points are given 3,1 and 11,y. 3,1 and 11,y means x1 and x2 is given, x1 y1 and x2 y2. ये दोनों दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है और हमें क्या करना है, तेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ y. कितना आसान हो गया हमारे लिए, इतना आसान हो गया. चलिए, सो नाउ वी पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशंस. हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है. अब अगर हम इसको मान लें, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, दिस इज x2 एंड y2. तो स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 11 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई. दैट इज टू बी होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 और y2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, y2 इज इक्वल टू y माइनस 1 टू द होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. ये दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, 10 यूनिट के बराबर है. और जब ये 10 यूनिट के बराबर है तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू हमने 10 रख दी. ठीक है, कितना आसान हो गया. अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, क्यों ना हम इसका रूट हटा दें. ठीक है, देखिए इस चैप्टर में जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो इसके रूट को क्या करिएगा, हटा दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा. कैसे करेंगे, हमें पता है स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं. और जब स्क्वायर कर देंगे तो रूट अपने आप वहां से हट जाएगा. तो वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड वी फाइंड दैट 11 माइनस 3 क्या होता है बच्चों, 11 माइनस 3 होता है 8 टू द स्क्वायर प्लस y माइनस 1 टू द होल स्क्वायर. y माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस y. अच्छा, ऐसा ना करें, सपोज दैट हम ऐसा ना करें तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं. चलिए इसको हम लोग ऐसे नहीं करते, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही करेंगे, y माइनस 1 टू द होल स्क्वायर. ठीक है, अभी हमने क्या किया, स्क्वायर हटाया, इधर रूट स्क्वायर रूट हटाया तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, 10 टू द स्क्वायर. ओके, एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. यू कैन राइट दैट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. देन 64 प्लस y minus 1 to the whole square is equal to 100 and y minus 1 to the whole square is equal to क्या हो जाएगा, 100 minus 64. 100 minus 64 that is to be 36. ठीक है, चलिए y minus 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर आया है, 36 के. तो y minus 1 की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट 36 इज इक्वल टू 6 हो गया. अब देखिए कई बार इसमें होता है, जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगता है तो क्या आता है, वैल्यू इज प्लस माइनस 6. ओके, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, दैट इज टू बी प्लस माइनस 6. तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, y की वैल्यू अगर हम प्लस 6 लेते हैं, प्लस 6 तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7. y की वैल्यू अगर हम प्लस 6 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा. और y की वैल्यू अगर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 टू द होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, 1 मिनट है ना, 1 मिनट इसमें हम लोग आ रहे हैं. ठीक है, अब जरा इसको आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6 आ जाएगी. तो y की वैल्यू हमें एक मिलेगी क्या, 5 मिलेगी, और एक वैल्यू हमें y की क्या मिल जाएगी, दैट इज टू बी, एक वैल्यू में क्या मिलेगी, 7 मिलेगी. हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी 5 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी. ठीक है, चलिए तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है, एक वैल्यू y की हमने निकाली 7 और एक की वैल्यू हमने y की क्या निकाली 5.
तो हमारे पास इसके दो आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सॉरी थर्ड कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इसमें आएंगे फोर्थ क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन। देखिए ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और आप जितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे आप उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, बिकॉज मैथ नीड प्रैक्टिस, है ना। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका जो मैथमेटिक्स का स्टाइल है सॉल्व करने का, आपका जो एक्यूरेसी है सॉल्व करने का, वो उतना ही तेज होता चला जाता है। ठीक है, अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक्यूरेसी एंड टाइम। तो हमें एक्यूरेसी और टाइम को बहुत मेंटेन करना है। सो वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y। वो कह रहा है x और y के बीच में रिलेशन बताइए। ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ओके, एंड फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, सच दैट the point px and y, the point px comma y, px comma y is equidistant from, is equidistance from the points, ठीक है। क्या कह रहा है, a is equal to 1,4, a is equal to 1,4 and b is equal to -1,2, -1,2। चलिए ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इट मींस दैट जो हमारे पास आंसर आएगा वो किसके टर्म में आएगा, x y दोनों के टर्म में आएगा। क्या आएगा, इक्वेशन आएगा, किसके टर्म में, x और y दोनों के टर्म में आएगा। चलिए ठीक है, सच दैट द पॉइंट p ऑफ x, y, सच दैट द पॉइंट p ऑफ x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड b। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट p यहां पर है जिसका मान क्या है, जिसकी वैल्यू क्या है, x, y है। यहां से एक डिस्टेंस आती है a और यहां से एक पॉइंट क्या आता है, दैट इज टू बी b। a की वैल्यू क्या है 1,4 और b की वैल्यू क्या है -1,2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1,4, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है -1,2। ओके ओके, ठीक है, चलिए तो -1,2 पे आ जाते हैं हम लोग। अब चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, दे बोथ आर इक्वल। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, PA इज इक्वल टू PB। दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो PA इज इक्वल टू PB। PA और PB आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर PA और PB इक्वल है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट PA, ये क्या हो जाएगा x1 minus x2, सॉरी x2 minus x1 to the whole square, ठीक है, एंड y2 minus y1 to the whole square। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज x minus 1 to the whole square प्लस y minus 4 to the whole square। ठीक है, अब यहाँ पर PB में आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रूट क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था। रूट इसलिए लगा, यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, x2 minus x1, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कई बार हम लोग सोच रहे होंगे यार ये तो x1 है, ये कैसे
हम इसको क्यों ले रहे हैं? इट डजंट मैटर कि हम x1 पहले लें या x2 पहले लें, है ना, रूट के अंदर है, आंसर वही आना है। चलिए आगे आते हैं, तो x2 माइनस x1, यहाँ से हमने इसको x2 मान लिया, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, सो वी फाइंड दैट। चलिए इसमें आते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 टू द सॉरी y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको ओपन करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज टू बी 4x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें सब में 4 4 4 कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आंसर आ गया। अब कह रहा x और y के टर्म में इक्वेशन बनाइए, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब अगर चाहें आप इस आंसर को थोड़ा और कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3, ठीक। अगर ऐसे कन्वर्ट करना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर इस तरह से आप बता सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कराएंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे ये सब जिनमें से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपकी एक्सरसाइज में कोई भी बुक आप उठाएंगे, आपकी एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। बस साथ साथ चलते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट on find the point on y-axis, on y-axis, find the point on y-axis which is equidistant from, which is equidistant from, which is equidistant from, ठीक है, which is equidistant from the point, from the point minus 5 comma 2, minus 5 comma 2 and 9 comma minus 2 and 9 comma minus 2। अगर आप सोचिए 9 comma minus 2 and minus 5 comma 2 कहां से पता करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस, चलिए एक पॉइंट है कोई, मान लेते हैं P, ये कहां पर है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 y होते हैं, 0 y होते हैं। ये कह रहा है इक्विडिस्टेंस है, यहाँ a मान लिया और यहाँ पर b मान लिया, ठीक। a की वैल्यू क्या है, -5 2 और b की वैल्यू क्या है, 9 -2। अब आपके लिए कितना आसान हो गया, उसने आपसे क्या कहा, दैट इज P इज इक्वल टू PB, दोनों आपस में क्या है, P इज इक्वल टू PB। प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन, इसके पहले हम लोग ने सॉल्व किया था, PA इज इक्वल टू PB और PA इज इक्वल टू PB, तो हम ये भी कह सकते हैं PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब सोचिए इसमें क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे पुट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर, ठीक, या x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 0 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 और होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1, y1 क्या है, y2 क्या है, ये y, यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू y माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, y माइनस 2 टू द होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली PB स्क्वायर, तो PB हम क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस 9 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 25,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे रहने दीजिए, इज इक्वल टू 9 9 का क्या हो जाएगा 81 और प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको जब आप कट करेंगे, इसको ओपन करके इधर ट्रांसफर करिए, इसको कट करिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। योर आंसर इज -8y। इसका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, इसका सॉल्यूशन -8y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56। कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। और आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, दैट इज टू बी 8, है ना। 8ab आंसर आता है। यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 56। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 अपॉन -8 एंड यू गेट दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आया -7। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, y इज इक्वल टू -7। दिस इज योर आंसर, y इज इक्वल टू -, ठीक है, y इज इक्वल टू -7, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक, जल्दी इन द सेंस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है ना, कॉन्सेप्ट को स्किप करके आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, है ना। और आपको पता है ये कि दिक्कत होगी तो क्या होगा, मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जो तुरंत गड्ढे में गिरा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन होंगे, अलग अलग सब, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। फाइंड द center of the circle, find the center of the circle passing through the points, passing through the point, passing through the point 6, -6, 6, -6, 3, -7, ठीक है, 3, -7, 3, -7 एंड 3, एंड 3। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात हो क्या कह रहा है कि एक सेंटर पता करना, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, और उसके अलग अलग 3 पॉइंट्स थे, वो 3 बिंदुओं से अलग अलग पास होता है, तो कहता है इसका सर्कल का सेंटर बताइए। तो हमें नहीं पता सेंटर क्या है, हमने मान लिया कि जो सेंटर था वो क्या था, P। हमने क्या माना कि सेंटर क्या था, दैट इज टू बी P है, और P के कोऑर्डिनेट क्या है x, y, ऐसा हमने मान लिया। अब यहाँ पर ये 3 अलग अलग पॉइंट से हो जाता है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। चलिए A हो गया, B हो गया और C हो गया। A के पॉइंट क्या दिए हैं 6, -6, B के पॉइंट क्या दिए हैं 3, -7 और C के पॉइंट क्या दिए हुए हैं 3, ठीक है। A, B और C तीनों के पॉइंट आपको दिए हुए हैं। कह रहा सेंटर को पता करिए, सेंटर क्या था, सेंटर को हमने सपोज कर लिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट सेंटर बी P, लेट द सेंटर बी P। सेंटर क्या है P है। चलिए अब क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करें ये क्या है PA, PB, PC। अगर ये सेंटर में और सर्कल में बने हुए ये पॉइंट्स क्या हैं, ये यहाँ से पास हुआ है, इसका मतलब ऑल आर द रेडियस, और रेडियस सर्कल की क्या होती है, ऑल आर इक्वल। सेंटर की सर्कल की रेडियस क्या होती है, सभी इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। होता है, बिल्कुल होता है। तो चलिए पहले हम सब कंप्लीट करते हैं, पहली कंडीशन पर आते हैं, PA इज इक्वल टू PB। हम इसको ये भी लिख सकते हैं PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा x -6 टू द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 होगा, इज इक्वल टू PB।
ठीक है। तो x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 7 तो y प्लस 7 हो जाएगा टू द होल स्क्वायर। अब आपको इतना तो आता ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को कट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6x प्लस 2y इज इक्वल टू, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब चलिए सेकेंड कंडीशन में आते हैं। सिमिलरली आपको ये भी पता है PB इज इक्वल टू PC, PB और PCB तो आपस में बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं ना PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए अब इसकी वैल्यू रखिए, PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं तो PB की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आते हैं, फर्स्ट हो जाएगा x माइनस PB है ना, x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा y प्लस 7 टू द होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि PB की वैल्यू यही तो है, PB की वैल्यू तो यही है, इसी को उठा के हमने रख दिया, दैट इज इक्वल टू PC क्या है, x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर एंड y माइनस 3 टू द होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, काफी कुछ कट जाएंगे, सारे टर्म्स कट जाएंगे और लास्ट में हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 20y इज इक्वल टू माइनस 40, 20y इज इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। 20y इज इक्वल टू माइनस 40, तो अगर y की वैल्यू हम पता करें तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस 4 ट्रांसफर करो तो ये प्लस 4, तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 18 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब जब x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो उसने पूछा क्या था, ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यही तो हमें पता करना था, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3, ठीक है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, माइनस 2, x की वैल्यू ना 3 और y की वैल्यू 3, ठीक है। सो इट इज क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को करना अगर आप आसानी से देखते रहेंगे, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर हियर। एक पूरा कॉम्बो पैक आपको मिलेगा जिसमें सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है, कहीं अदर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने पे। कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स, क्वेश्चन क्या है, सो दैट द पॉइंट्स a, ठीक है। सेकंड क्या है, माइनस a, माइनस a, और थर्ड क्या कह रहा है, एंड माइनस रूट 3a, रूट 3a, ठीक है, are the vertices of n, equilateral triangle, ठीक है, are the vertices of an equilateral triangle, find its area,
चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कह रहे हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं क्या, है क्या, चेक करेंगे। ठीक, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या बनेंगी, इक्वल बनेंगी। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया का फॉर्मूला हमें आता है। चलिए बहुत अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन कितना मजेदार आपके लिए हो सकता है, कितना मजेदार सॉल्यूशन हो सकता है। कैसे बनेगा मजेदार सॉल्यूशन, जरा आप देखिए। आपसे पूछा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC या C। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम AB निकालते हैं। AB, तो हम क्यों ना AB निकाल के AB स्क्वायर निकालें, आसान हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो क्या होगा, AB की वैल्यू क्या है, A माइनस A, और यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, दिस इज A। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, A कॉमा A, B की वैल्यू क्या है, माइनस A कॉमा A माइनस A, और C की वैल्यू क्या है, दैट इज टू बी माइनस रूट 3 A कॉमा रूट 3। ठीक है, C की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, C की वैल्यू ये दी हुई है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, x1 माइनस x2, यानी कि सॉरी x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 माइनस A और माइनस माइनस A का बेस हो जाएगा, x2 माइनस x1, और दूसरा क्या होता है y2 माइनस y1 प्लस माइनस A माइनस A का बेस। अब यहाँ देखिए ये माइनस 2A हो जाएगा, 2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, यहाँ भी माइनस 2A तो 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8A स्क्वायर। बन गया, 8A स्क्वायर बन गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं BC स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों कर देते हैं, स्क्वायर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाता है, रूट नहीं लगता। चलिए BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC में आते हैं तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू A माइनस क्या है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब जरा इसको ऑब्जर्व करिए आप। ठीक है, इसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर BC है ना, हाँ BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, BC की वैल्यू पुट करेंगे माइनस A, ठीक है, माइनस A और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 3A टू द होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा माइनस A है ना, और माइनस रूट 3A टू द होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8A स्क्वायर, 4A स्क्वायर हो जाएगा और 8A स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, A माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, और ये A माइनस B का माइनस कॉमन ले लीजिए तो भी हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8A स्क्वायर आ जाएगी। चलिए नाउ वी फाइंड CA भी कह सकते हैं या इसी को हम क्या कर सकते हैं AC का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे AC का स्क्वायर, वी पुट ऑल द वैल्यूज। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए पुट करिए। ठीक है, माइनस रूट 3A, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस A का होल स्क्वायर, सॉरी AC है ना, A की पॉइंट आ जाएगा तो माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस A का होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस रूट 3A माइनस A टू द, ठीक, जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज टू बी 8A स्क्वायर, 8A स्क्वायर। एंड स्टूडेंट्स नाउ द आंसर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। कमाल हो गया। ठीक है, और ये कमाल होना भी था क्यों, क्योंकि उसने कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, तो हमने प्रूफ किया, और बिल्कुल यस ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्योंकि जब AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर, तो हम ये भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA या AC। इसका मतलब सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हम क्या कहेंगे, यस गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, द गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अब उसने एक चीज और पूछी, ठीक है, अब उसने एक चीज और पूछी, ये प्रूफ हो गया हमारा, बिल्कुल। चलिए
चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, आपसे पूछा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी ये है √3/4 और साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर सबकी वैल्यू क्या दी थी 8A स्क्वायर, 8A स्क्वायर। हम इसको कट कर देंगे, क्या आएगा 2। सो वी कैन से दैट 2√3A square is the area. 2√3A square is the area of this equilateral triangle, ठीक है। 2√3A square क्या हो जाएगा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। चलिए अभी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं 7 और हमें करने कितने हैं 14। कल हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन जैसे कि रेक्टेंगल के, स्क्वायर के क्वेश्चंस, ठीक है, डायगोनल्स फाइंड करना, वर्टेक्स फाइंड करना, इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करेंगे, आप उसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।